I don't find a difference between a public or a private university. The main interview जो होता है ना, it's not about how. Hi everyone, we're back with the Premed Podcast. My name is Azib and I'm a first year medical student at Jeddah Medical and Dental College, and I'm an intern and MedAngle Premed. So we will start the podcast with a very common question कि when a pre-medical student ने अपना एक MCAT दे दिया, now they are going into the admission process. So उनके जहन में ये सवाल जरूर आता होगा कि अगर मैं प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो क्या मेरा मेडिकल कैरियर बेहतर होगा एक पब्लिक मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड डेंटल यूनिवर्सिटी से. सो इसी वजह से टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फी स्ट्रक्चर, अबाउट द फैकल्टी, अबाउट द स्टूडेंट environment and the learning environment in these private universities. And for that, we have two great speakers on our end. That is first Riyam Masood, a second year private MBBS student from Jinnah Medical and Dental College, who is also my senior. And we have Abbas Hussain, who is a private BDS student from Altamas Institute of Dentistry Medicine. Okay, guys, so we will, first start with your proper introduction. So, Ryan, why don't you go ahead and, give an introduction about yourself and a little bit experience about MBBS. Okay, so hello and assalamu alaikum everyone. I am Ryan Masood and I'm a second year medical student at Jinnah Medical and Dental College, which is one of the private medical colleges in Karachi. And it's affiliated with Jinnah Sindh Medical University, which is basically our degree awarding university. And I started my MBBS in 2022, I believe. And my second academic year is about to end. It actually has ended. And now I'm just waiting for my profs. Great to hear that from you, Ryan. So now on to Abbas. Abbas, as a private BDS student, give, a little introduction about yourself and your experience as a private BDS student. Okay, so first of all, my name is Syed Abbas Hussain. I'm a private dental student in this case, and I'm a second year BDS student currently doing BDS from Altamas Institute of Dental Medicine. Just as Rayan and Wes's university, our university is also affiliated with JSMU, which technically makes us, I don't know, triplets or brothers in arms, I guess. Yeah. But BDS so far, alhamdulillah, has been really good. As a private student, I don't find a difference between a public or a private university as of now. People are really good, the atmosphere, the environment is excellent. And through this podcast, I hope I can provide a fresh perspective. And also I can, clear a few misconceptions a lot of people might have going into the admissions. So, yeah, that's it. Okay, thank you, Abbas, for your introduction. That was great to hear that. So now, as we dive into the, the main discussion part of our podcast, I'm going to ask a very, the very common question that we have around this. कि एक प्री मेडिकल स्टूडेंट है जिसकी एडमिशन एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, तो या उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया, तो अब उनके पास जो ऑप्शन रह जाता है दैट इज द प्राइवेट यूनिवर्सिटी और द मेडिकल एंड डेंटल प्राइवेट यूनिवर्सिटी. सो ये पर्टिकुलर माइंडसेट देखा है मैंने प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के माइंड में. In what way do you think this mindset is, any different than someone who got an admission into a public university? So, Rayan, why don't you answer this question? Okay, so this is a very typical mindset. मैंने ये नोटिस किया कि जब मेरा वक्त था Mdcat का, तो मेरे साथ बहुत सारे जो फेलो स्टूडेंट्स थे जिनका पब्लिक मेडिकल कॉलेज के अंदर नहीं हुआ, the ones who could even afford the private ones, they were actually in a dilemma कि should we really consider going for private. तो सबसे पहली बात जो किसी भी मेडिकल स्टूडेंट को प्री मेडिकल स्टूडेंट को रेडी हो जाना चाहिए उसके लिए कि this field actually is for the ones who are actually passionate about medicine. आपको कोई फोर्स करके नहीं लेके जा सकता एंड आप किसी प्रेशर में नहीं आ सकते मेडिसिन के अंदर. You have to know the importance of something that you're getting into, right? तो जो बच्चे क्या कहते हैं इससे पहले रेडी नहीं थे ना, बेसिकली पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए खाली थे, तो आई वुड से कि दे वर नॉट इवन पैशनेट अबाउट इट. लेकिन जो एक्चुअली मतलब कि अफोर्डिंग नहीं थे एंड उनके फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी नहीं थी, उनका समझ में आता है. इसी के अंदर मैं एक और ये चीज़ देखता हूँ कि बच्चे जो है
अगर उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता, they usually consider for going for the retake of the MDCAT, right? तो उसके अंदर यार उसके अंदर बड़ी बड़ी चीजें आ जाती हैं, सो यू हैव टू बी वेरी कंसिडरेट अबाउट इट कि यू हैव टू नो योर सिचुएशन कि आपने अगर साल जाया करना है तो यू हैव अदर ऑप्शंस एज वेल, क्योंकि देयर इज नो कंफर्मिटी कि आपका अगले साल मेडिसिन में होना है दाखला, एंड इफ यू आर एक्चुअली पैशनेट अबाउट इट तो यू विल बी विलिंग टू टेक द रिस्क. दैट्स व्हाट आई हैव सीन. लेकिन इफ यू आर नॉट तो गो फॉर समथिंग एल्स यार. मेडिसिन इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. आई थिंक कि people should be opting for other fields as well. Okay, that's a very friendly advice from Ryan, and I think we should consider it before getting to a decision of before getting to private medical or dental universities. So thank you, Ryan. Now we are going to Abbas, and we are going to ask about his mindset about this question. So Abbas, on to you now. Thank you so much, Wes. Okay, I believe the common mindset is that everyone off the bat would go like a public university is side pe hogi, and private university is for the students who don't study or not competent, who you know in other words farig hain, mind my language. The thing is that if a person actually opts for medicine even in their college years, that person, if may it be a boy or a girl, that person is considered to be a very studious person. Am I wrong or right? I think you're right. Yeah, exactly. Up now, if a person for any reason at all does not get his admission in a public university, वो private university में आ गया, it's absolutely fine. अगर वो अपना first prof clear कर रहा है, अब जैसे रयान अभी he's done with his second year, and I'm sure he's one of the most good students, the most studious person, or the most studious students there. My point of saying is that even if a student is in a private university, वो by no means वो कोई बुरा पढ़ने में है, by no means वो उसको पढ़ना नहीं आता, उसकी dedication और उसका जो work set है, उसका जो mindset है, it's exactly the same as a student who's in a public university. Everyone has to go through the same studies, everyone has to go through the same procedure, everyone has to go through the same progress. Levels में वो आ सकती है, but the progress, the procedure is the same. Competence remains the same. That is why if यहाँ पे I personally know a lot of people who are in Dow, who are in JSMU, they look at us and they go like कि यार you actually are living the dream considering यार आप private universities में हो. तो एक साइड पे अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पे लोग शेम भी कर रहे हैं, तो ऑन द अदर हैंड there are a lot of people who are actually admiring private universities. So, picking up on Rayan's point, it's not about private or public. It's about your passion for pursuing medical or pursuing dentistry. And if you're really into it, go into it. These labels or topics, they don't matter. The only thing that matters is that you're doing BDS, you're doing MBBS, you want to help people around. And that is what your goal should be. I would like to add on with Abbas's point कि जो पब्लिक यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं, जो उसके अंदर अब्बास ने जैसे कहा कि डिस्क्रिमिनेशन होती है कि दे आर एकेडमिकली वीक, प्राइवेट वाले जो हैं, दैट्स व्हाट द कॉमन पर्सपेक्टिव इज, राइट? तो इसके लिए अ सिंपल थिंग इज के आप एक बच्चा उठाएं AKU से. खान इज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, राइट? And you pick a student from any of the government institutes and you keep them side by side, तो आपको एक बहुत वाज़ेह फर्क पता चलेगा कि यार the institution, what the institution has to do with students. It's not about government or private. It's actually number one is about the student himself, him or herself, कि वो कैसे क्या कहते हैं टैकल करते हैं चीज़ों को. दूसरा, इट्स नॉट रियली दैट इम्पोर्टेंट कि आपका जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो इतना अच्छा हो और प्राइवेट ना हो, क्योंकि ये एक कॉमन पर्सपेक्टिव है. एक जैसे मैंने एग्जांपल दी AKU, और आप किसी भी बिल्कुल मेरी यूनिवर्सिटी जिना के बच्चे को आप उठा लें, जिना सिंध के, तो आपको पता चलेगा कि कितना फर्क होता है. और ये पॉइंट उधर ही शटर कर जाता है जब आप दो ऐसा कंपैरिजन दो यूनिवर्सिटीज के दरमियान करते हैं. Okay, so that's a great point picked by Ryan, and I think every pre-medical student should keep that in their mind. So now moving on,
we have, and the next question in our line regarding the MCAT admission process. Now, once an MCAT aspirant has given their exam, now as they enter into the admission process, they find, there is a particular difference between getting admission into a private university and then into a public university. For that, and highlight this question, I would like, Abbas to first answer this question on what does he think about this matter. So please, Abbas, go ahead. Okay, so obviously there's a huge difference between the merit. If you'd compare it with a private university, I think इसी year की इसी नहीं last year, even in my time, जो Dow, JSMU, AMCs, they were like at 90, 95 a sector, उनके merit बहुत high percentages पे close हो रहे थे, as compared to private universities 80, maybe 75 a sector. अब यहाँ पे for a student to actually, if he'd be getting into it and if he'd be analyzing the whole situation, उसके दिमाग में फिर ये बात आएगी कि यार प्राइवेट यूनिवर्सिटी का तो मेरिट भी लो है, क्या पता कॉम्पिटेंसी का लेवल, क्या पता वो जो एक क्वालिटी का लेवल है वो नीचे हो जाए. आई एम टेलिंग यू दिस once again, and very, I don't know, and personally I don't know, but in my case, alhamdulillah, I've had the best experience in my university so far. और अगर आप नॉर्मल एक पब्लिक ओपिनियन को भी हम यहाँ पे ले आते हैं, if it not have been the money, the fee आगा खान की, I think सबकी टॉप प्रायोरिटी आगा खान ही होती है. Am I right or wrong? ऐसे है या नहीं है? Definitely right, I would agree. Exactly. People see at Aga Khan, चाहे उसने वहाँ पे एंट्रेंस लेनी हो या ना लेनी हो, वो आगा खान का टेस्ट देता ही देता है, क्योंकि दे थिंक आगा खान इज द बेस्ट. आगा खान भी तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ना. सिमिलरली इन द फील्ड ऑफ डेंटिस्ट्री, आई थिंक अल्तमश का बहुत ऊपर नाम आता है अल्हम्दुलिल्लाह. And people again don't think about the fee and all. They think about, हाँ यार मैं 9th क्लास से अल्तमश का नाम सुन रहा हूँ. And I've always been going कि यार अल्तमश बहुत अच्छा वो होगा. I never in my mind I had this in my mind at all, or there was no thought at all. कोई दिमाग में सोच नहीं थी कि यार level of competency जो है वो कम हो जाएगा. Not only faculty, to the facilities, to the environment, everything is well catered for, alhamdulillah. अगर आप उसी मेरिट को, हाँ ये है कि डाउ JSMU में हर बच्चा जो है वो 95, 96 टॉप, वो कंपटीशन बहुत अच्छा चलता है. यहाँ पे मे बी वो कंपटीशन अच्छा ना हो, बट बाय नो मीन्स आई एम सेइंग कि यहाँ पे बच्चे जान नहीं मारते, यहाँ पे बच्चे मेहनत नहीं करते. उसी तरह से उसी सेम डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन के साथ इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी उतने ही कॉम्पिटेंसी और उसी क्वालिटी के बच्चे अपने जौहर दिखा रहे होते हैं. When it comes to the admission criteria, or when it comes to the whole process, alhamdulillah, it was very smooth for me, and it's almost the same as the private, as the public universities. आपने जो documents आपसे, in my case Mdcat का result था, domicile था, P-Form, passport, CNIC, etc. परसेंटेजेस, हाँ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में परसेंटेजेस का एक डिफरेंस था. पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आपका 90s में होता है, हमारा 75 to 80 का था. एंड आई फेल ऑन दैट क्राइटेरिया, एंड दैट इज़ व्हाई आई वाज कंसिडर्ड. देन आई वेंट देयर, वहाँ पे मेरा इंटरव्यू लिया. द इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट हाउ माई पैशन फॉर medicine, or in my case dentistry, came in, and how I wanted to be a dentist and why am I giving this interview. जो common questions होते हैं आपके किसी भी interview में. Then they asked about my MDCAT score, and then they asked me about even if I'm not admitted in the university, अगर मुझे नहीं लेते तो would I go for a second attempt, क्या मैं second attempt लूँगा नहीं लूँगा. तो admission का progress is very spontaneous, but it goes really smoothly. आप उस क्राइटेरिया पे फॉल कर गए, बस यू आर एडमिटेड इन द यूनिवर्सिटी. बिल्कुल एक पब्लिक यूनिवर्सिटी जैसा ही वो चूजिंग वो होता है, क्राइटेरिया होता है, आपको एडमिट उसी क्राइटेरिया पे किया जाता है. हाँ, व्हेन इट कम्स टू द सेमी प्राइवेट, इन मैं बम DC, CMHS, AMC की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे एक डिफरेंट क्राइटेरिया हो जाता है, क्योंकि इट्स ऑल्सो एफिलिएटेड विद द फोर्सेस. तो वहाँ पे ज़रा इंटरव्यू इज़ वेरी टफ टू क्रैक. इवन आगा खान जो है एक ही हमारे पास है, इवन ज़ियाउद्दीन, उनका इंटरव्यूज़ आर कंसिडर्ड टू बी द हार्डेस्ट.
So you need to have a little prep and a little know-how about how to crack that interview. But Altamashka interview and admission process is really smooth, and it's very similar to a public university. आराम से लोगों का हो जाता है, तो people don't have to be worried about at least Altamash. Yeah. Totally agree with Abbas since I have also given my interview in Ziauddin University and in JMDC. So thank you, Abbas. Now we will move forward to Rayan and ask from his end, what does he think about this? Yes, so admissions, यार एक तो 2 साल हो गए ना एडमिशन को. I don't remember a lot about it, but I'll tell you what I remember. तो ऐसे होता है कि once you're done with your MDCAT, तो you're waiting now for your scores, right? And once the scores are out, तो फिर आप वेट कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला इस बार मेरिट करा दें. तो ये होता है यूजुअली. एंड जब मेरिट लिस्ट आना शुरू होती है, तो you're looking at, मतलब कि अगर आप किस किस रेंज के अंदर फॉल इन कर रहे हैं, राइट? तो आप, इफ यू एट 1400, मेरिट नंबर 1400, देन यू आर इन द सेफ रेंज यूजुअली. क्योंकि उसके अंदर फिर आपका क्या कहते हैं, सेल्फ के ऊपर भी यूनिवर्सिटीज हैं. प्योरली मेरिट पे तो आपको हो सकता है ना मिले, दैट्स अबाउट 800 900 की रेंज होती है वो. लेकिन उसके बाद जो है, यूर यूजुअली गोना गो फॉर सेल्फ. तो अगर आप खुदा न खास्ता उसके अंदर भी फॉलो इन नहीं करते हैं, जैसे मैं नहीं किया था फॉलो इन उसके अंदर, एंड आई वाज एट अबाउट अ रेंज ऑफ, आई थिंक इट वाज 2000, या इट वाज 2000, 1900 या 2000. तो उसके अंदर पे आई हैड टू गो फॉर प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज, राइट? तो जब ये गवर्नमेंट चल रहा होता है, एंड मीनवाइल दे स्टार्ट विद द प्राइवेट एज वेल. तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बेसिकली अपने इश्तिहार देती हैं न्यूज़पेपर्स के अंदर and उनकी वेबसाइट्स के ऊपर कि the admissions are now open and you have to individually apply for each university. तो जैसे मैंने अप्लाई किया था एलएनएच के अंदर, किया था मैंने जाउद्दीन में अप्लाई किया था, यूनाइटेड में किया था, जेएमडीसी आई अप्लाइड जेएमडीसी एट द वेरी लास्ट मोमेंट. आई रिमेंबर इट वाज द लास्ट डेट व्हेन आई अप्लाइड फॉर जेएमडीसी. एंड एलएनएच के अंदर जो है, मुझे कॉल आई थी, लेकिन आई अनफॉर्चुनेटली मिस दैट कॉल. और उसकी वजह से जो है, मैंने क्या कहते हैं, मेरा हुआ ही नहीं. और जियाउद्दीन का मैं इंटरव्यू देने नहीं गया था माशाल्लाह से. तो क्योंकि जियाउद्दीन का, आई अप्लाइड जियाउद्दीन, बट माय डैड हैड some other arrangements. He said, nah, don't go for Ziauddin. I don't know. He had his reasons. तो that was one of the main reasons. फिर मेरे जेएमडीसी मैंने अप्लाई किया, एंड आई रिमेंबर कि मुझे जब जेएमडीसी की कॉल आई, so I was really excited, क्योंकि उससे पहले कॉल नहीं आ रही थी, एंड आई वाज वेरी वरीड कि यार वो, because my passion was basically MBBS. I was in a very safe zone for BDS, लेकिन no offense to Abbas, लेकिन I was not looking for BDS for myself, right? So I was gonna go for MBBS. तो मैंने कहा यार, I'll have to repeat if this doesn't go well. So fortunately, GMDC called, and I'll be very honest and I'll be very blunt towards GMDC. Okay, and not only GMDC, I'll be very blunt towards any interview from the private medical universities, excluding AKU. Okay, the main interview जो होता है ना, it's not about how passionate you are for medicine. It might be about it, but a small portion of it only. वो जो होता है ना, basically they're judging you for your financial conditions, and they're judging you for your family background. So same happened in JMDC for me. The interview went well. Basically, they were judging me for the financial conditions. If I'm able to afford it in the long run, and मैं जो हूँ वो back ना कर जाऊँ फीस mid year में. Obviously, it's right from their side as well, क्योंकि उनकी सीट ज़ाया हो रही होगी, तो उनका भी नुकसान है. तो इसलिए जो है वो बेसिकली इंटरव्यू होता है. तो इंटरव्यू के अंदर you have to be very chill, and you have to just go and speak yourself कि आपने, you're passionate about medicine, and you might repeat if you're not selected, and you have to tell them your plans कि मैं, this is the road map that I'm following, कि I'm planning on doing MLE or PLAB or whatever. आप पाकिस्तान में रहना है, आपने वो रोड प्लान बताना है. And they're just judging you for your family background, your financial conditions, and जो आपका, basically आप किस background से आ रहे हैं, and how you would impact their university, right? एक माहौल होता है यूनिवर्सिटी का जो आपने इम्पैक्ट करना होता है ईच एंड एवरी स्टूडेंट ने. तो वो उसके लिए जज कर रहे होते हैं आपको. उसके अलावा इट वेंट वेल. आई थिंक मेरा इंटरव्यू हुआ, उसके बाद दे कॉल्ड मी कि यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड, एंड इफ यू वांट टू ऑप्ट आवर कॉलेज, तो आप जो है वो 1 या 2 दिन का मेरे ख्याल से फीस का टाइम देते हैं वो, कि आप उसके अंदर जो है अपनी फीस जमा करवा दें. एंड या इट वेंट वेरी स्मूथली.
Okay, so I think you had a very great experience with your college. So now moving forward and ending with our mid discussion, we will now go on into the part where we discuss, the common rumors or common myths that are surrounding, yeah, after the admission process into the medical school के एक डिग्री इन बैचलर्स एक बीडीएस स्टूडेंट और एक एमबीबीएस स्टूडेंट को जब मिलती है, सो वो ये जरूर सोचते होंगे कि हमारी डिग्री एक पब्लिक मेडिकल एंड डेंटल स्टूडेंट से किस लिहाज में डिफरेंट है। तो इस पे कमेंट करते हुए मैं अब्बास आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी क्या इन व्हाट वेज आपकी क्या ओपिनियंस है इस पे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अवैस द थिंग इज दैट हमारी जो यूनिवर्सिटी है, इवन इन योर केस जे एम डी सी एंड सिंध में एटलीस्ट ये होता है, आई कैन नॉट स्पीक फॉर अदर प्रोविंसेस, a lot of private universities except of Ziauddin and Aga Khan are affiliated to public universities. जैसे हम JSMU से affiliated हैं, आप जो है वो JSMU से affiliated हैं, UMDC DAO से affiliated हैं, and etc. तो डिग्री तो आपको वही मिल रही है, देन हाउ इज इट डिफरेंट, राइट? अब यहाँ पे सारी बात स्किल सेट की आ जाती है, यहाँ पे आपके इन्वायरमेंट की बात आ जाती है, यहाँ पे आपकी कॉम्पिटेंसी की बात आती है। अल्हम्दुलिल्लाह इन आवर यूनिवर्सिटी everything is up to par, everything is top tier, standards are very well maintained, faculty caters for us। हर blatantly अगर मैं बात करूँ, आधी से ज़्यादा क्लासेस दिल चाहता है कि बंक करें, सीधी सीधी बात है, नहीं लगता, फार्मा पढ़ रहे होते हैं, पैथो पढ़ रहे होते हैं, बहुत जो है वो आगे लोग और पढ़ रहे होते हैं, नहीं लगता दिल, बंक करने का दिल चाह रहा होता है, वो होता है। हमारी जो डीएम की टीचर हैं, आई वुड लाइक टू मेंशन हियर राइट नाउ, डॉक्टर राफिया, वो हमें जिस तरह डेंटल मटेरियल बढ़ाती हैं, आई थिंक उनसे बेहतर टीचर मैंने अपनी ज़िंदगी में, उनसे बेहतर डॉक्टर मैंने कोई नहीं देखा। तो यू नो, अप्स एंड हाइज एंड लोज, अप्स एंड डाउन हर यूनिवर्सिटी में होता है, ठीक है? तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स यू एंड योर डिग्री एंड योर स्किल। कोई आखिर में ये नहीं देखेगा कि यार ये ज़ियाउद्दीन का डॉक्टर है, डाव का डॉक्टर है, या आगा खान का डॉक्टर है। आगा खान का डॉक्टर भी अगर एक क्लिनिक खोलेगा या एक हॉस्पिटल में काम करके पेशेंट्स को उस तरह की सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा होगा, तो वो आगा खान का स्टेटस कहीं भी उसको हेल्प नहीं करेगा। आखिर में a doctor or a dentist is known by his own skill set and his own sense of his own craft. If he's not a master of his craft, he will be shamed on, he will be hated upon. तो ये तो क्वेश्चन दैट डिग्री इज़ नॉट, उस डिग्री का नाम नहीं है या डिग्री की उतनी वैल्यू नहीं है, दैट्स अ वेरी, if people have this mindset, then I don't think so it should remain there, and people should actually, once they in a university, regardless of what the degree is, they should just focus on themselves and improve their craft as they move along the years. I believe that's a great advice for which we can all learn something. And thank you for it. Ryan, on to you. And what would you like to say about this regard? Yes. So let me repeat your question. So your question was basically कि पब्लिक यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है, इन ए कॉमन व्यू, उसको बेहतर माना जाता है एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की डिग्री से, राइट? अच्छा, Yes. तो सबसे पहले तो इट्स इट्स अ मिथ। आई विल एक्सप्लेन टू द पीपल हु डोंट नो, मतलब उनको जिनको इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है इधर मेडिसिन की। देखिए जी, सबसे पहले तो जो है ना, I'll be denying this myth, इसलिए क्योंकि सबसे पहले हमारे जहन में जब भी हम लोग किसी अच्छे मेडिकल यूनिवर्सिटी की पाकिस्तान में एटलीस्ट बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में आता है AKU। इट्स नंबर वन। एनीवेयर आप कहीं पे भी पाकिस्तान में हो, इट्स नंबर वन। तो सबसे पहले तो यही डिफाई कर गया कि AKU इज अ प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, उनकी जो है डिग्री इट्स बेटर देन एनीवन, उनका बच्चा जो है इट्स डिफरेंट देन एवरी अदर इंस्टीट्यूट। दूसरी चीज, जो इतनी जिनको नो हाउ नहीं है मेडिसिन की, आई टेल यू कि वंस यू ग्रेजुएट फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी, आपको डिग्री मिल जाती है, उसके बाद यू गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, राइट? तो पोस्ट ग्रेजुएशन इज इन पाकिस्तान थ्रू CPSP, कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन पाकिस्तान, राइट? तो CPSP जो है, CPSP डज नॉट आस्क फॉर योर यूनिवर्सिटीज डिग्री। CPSP में जब आप जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन FCPS करने के लिए, या फिर MPhil करने के लिए, व्हाट्सएवर, तो उसके अंदर दे डोंट इवन आस्क यू कि आप किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किए हैं।
what they ask you for is your PMDC registration, right? The regulatory body of Pakistan medical colleges की. And PMDC registration के अंदर जो है, that's the only thing that you're required to have for CPSP, for FCPS or whatsoever. तो ये तो बात यहीं पे कैंसिल आउट हो गई कि आपकी जो यूनिवर्सिटी की डिग्री है वो वर्थ करती है। दूसरी बात दूसरी बात ये है कि वंस यू हैव अ रेगुलेटरी बॉडी इंटैक्ट ना, जो कि सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स को क्या कहते हैं बेसिकली अप्रूव करती है फॉर एडमिशंस, जो कि पीएमडीसी है पाकिस्तान के अंदर, तो देर इज नो वर्थ ऑफ एनीथिंग, फिर एवरीवन इज इक्वल। क्योंकि डाओ को भी वही वही बॉडी जो है वो रिकग्नाइज करेगी, फिर फजाइया को भी वही बॉडी रिकग्नाइज करेगी, जिना को भी वही बॉडी रिकग्नाइज करेगी। तो एवरीवन इज अंडर दैट अम्ब्रेला। वो आपके फोर्सेस के मेडिकल कॉलेजेस हों, आपके पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस हों, केई हो, एकेयू हो, एवरीवन इज अंडर दैट अम्ब्रेला। तो वंस यू आर डन विद, अगर आपको उन्होंने ही रिकग्नाइज कर दिया है, तो देयर इज नो क्वेश्चन कि आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री वर्थ इट नहीं है। एंड दूसरी बात, जैसे मैंने बताया कि सीपीएसवी के अंदर आपको जरूरत पूछता ही नहीं है सीपीएसवी की आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री कौन सी है। तीसरी बात, जैसे अब्बास ने कहा कि जितनी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो यूजुअली जो कॉलेजेस हैं वो अफिलिएटेड होते हैं किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी से। तो डिग्री तो उनकी भी सेम होती है, हमारी भी सेम होती है, फर्क इतना होता है हम बस पैसे ज्यादा दे रहे होते हैं। तीसरी बात जो चौथी बात है वो ये है कि हाँ, इफ यू it's more of an advice कि if you're doing private medical school ना, and you're paying so much, so you'll have your way through it, मतलब कि आपको पता होगा कि आपने क्या करना है। एंड मोस्टली बच्चे जो है, मैंने अब रिसेंटली देखा है, नोटिस किया है कि अब बच्चों के अंदर थोड़ा ज्यादा शऊर आ गया इस बारे में कि दे नो व्हाट दे वांट टू डू, दे नो देयर पाथवे कि यार हमने एक यू के लिए प्लान करना है, वी हैव टू प्लान फॉर प्लैब, वी हैव टू गो फॉर ऑस्ट्रेलियन बोर्ड। तो दे नो कि उन्होंने क्या करना है। एंड वंस बाहर जाना है तो फिर तो कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री की वर्थ ही नहीं है। दे डोंट आस्क यू एनीथिंग, दे हैव देयर ओन मेडिकल एग्जामिनेशंस दैट यू हैव टू पास। तो बात अब्बास वाली बात पे दोबारा आ जाएगी, इट्स ऑल अबाउट योर स्किल, कि आपने कितनी स्किल डेवलप की है अपने मेडिकल के स्कूल के अंदर, आपका कितना एकेडमिक एक्यूमेन है कि आप जो है अगली तरफ अगर जाएं तो आपको अपनी डिग्री की वर्थ के ऊपर नहीं बताया जाए, एंड दे हैव टू जज यू ऑन योर स्किल सेट। That's a really logical answer, Ryan, by your side, and I highly appreciate it so that, other pre-medical students can also hear about it. So, when yet we are done with this question, now we are moving to forward कि जब एक medical student ने अपना, you know, अपनी डिग्री ले ली है इन एमबीबीएस और बीडीएस, सो अब बात आती है उनकी एक ईयर ऑफ हाउस जॉब पर, उनकी ईयर ऑफ एक इंटर्नशिप पर, कि एक प्राइवेट मेडिकल या डेंटल स्टूडेंट उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कर रहा है और एक पब्लिक मेडिकल और डेंटल स्टूडेंट उसे एक पब्लिक हॉस्पिटल में कर रहा है। सो उनकी हाउस जॉब में क्या फर्क होगा अगर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कर रहा है? अब्बास, हाउ वुड यू आंसर दिस क्वेश्चन? Okay, so basically, if you assess and compare public and private universities, comparisons different stages पे हम कर लेते हैं. Let's go with the hospital the university is working with, right? When it comes to Altamash, हमारा Altamash General Hospital है, हम वही हैं. When it comes to Dow, Civil Hospital है, JSMU का जना Hospital है, etc. अब यहाँ पे at all the the priority is the patients, right? Patients आ रहे हैं, वो अपने आप का चेकअप करा रहे हैं. अब यहाँ पे बात यही आती है कि सिविल हॉस्पिटल में पेशेंट्स का अंबार है, जना में पेशेंट्स का अंबार है, पीपल हैव अ लॉट ऑफ पेशेंट्स. और public university are public universities are really blessed to have a lot of patients. उनका हाथ वहाँ पे साफ होता रहता है. अल्तमश में I'll be really honest to you, अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में लोग इतने नहीं आते. जो हमारा पंजाब चौरंगी में जो 3rd and 4th ईयर वाला कैंपस है, वहाँ पे यार लॉट आ जाती है, बट नॉट as much as compared to जो सिविल हॉस्पिटल और जना हॉस्पिटल में वो आ रही है. बट दैट अगेन सर्टेनली डज नॉट मीन कि अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अगर हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स कम आ रहे हैं तो यार हम अपना एक्सपीरियंस कैसे डेवलप करें. अगेन दैट इज़ हाउ यू आर गेटिंग योर स्टफ, एंड व्हाट मैटर्स इज दैट अगर आपको एक पेशेंट भी मिल रहा है या 2 पेशेंट भी मिल रहे हैं तो आप अपना स्किल कैसे डेवलप कर रहे हो. प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो हॉस्पिटल्स अफिलिएटेड होते हैं उनमें बहुत अच्छी बात ये होती है कि आपके पास टॉप क्वालिटी फैसिलिटीज़ होती हैं और टॉप क्वालिटी इक्विपमेंट होता है.
जैसे डाओ ओझा हो गया, वहाँ पे फैसिलिटीज़ आर रियली नाइस, अल्तमा जनरल हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ आर रियली नाइस। तो फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट्स का मेजर फैक्टर आ जाता है। पेशेंट्स और क्लाइंटल्स में ऊपर नीचे होती रहती है, बट यू नो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। अब अ पर्सन कैन यूज दिस फैक्टर एज एन एक्सक्यूज और एज अ मोटिवेशन के यार अब अगेन यू नो देर ईच एंड एवरी सिंगल साइड ऑफ वन बुक, हर चैप्टर का अलग अलग मीनिंग होता है, हर बुक का एक अलग, हर स्टोरी का एक अलग साइड होता है। तो अगर आप उन 2 3 4 पेशेंट्स में इतना आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी और आपने अपने स्किल और क्राफ्ट पे मास्टर कर लिया है, तो यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। अगर आप 50 लोगों पे भी आप इम्प्रेशन ले रहे हो, आप 50 लोगों में वो अल्टरनेट जो है वो हलक में उनके जा रहे हो और वो गैग और वो चोक कर रहे हैं उस पर, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ हैविंग 50 पेशेंट्स, आप उन सबको इन डेंजर कर रहे हो। तो माई पॉइंट ऑफ सेइंग इज दैट फ़र्क है, कहीं पे अगर पेशेंट्स का है तो कहीं पे इक्विपमेंट्स का है, बट एट द एंड ऑफ द डे अगेन यार आप एक मेडिकल या डेंटल स्टूडेंट हो, आप बस अपने स्किल पे फोकस करें, आप यूट्यूब वीडियोस देखें, आप पेशेंट को मारे नहीं, लेकिन आप पेशेंट्स पे एक्सपेरिमेंट भी करें। दिस इज योर लर्निंग स्टेज। मैं सेकंड ईयर में मैंने अपने बहुत दोस्तों का जब मैं इम्प्रेशन दे रहा था, तो मैंने ये जो अल्टरनेट वो मैंने इम्प्रेशन वाली एग्जांपल दी है, मैंने एग्जांपल इसलिए दी क्योंकि मैंने खुद किया है। वो बंदा अब मुझसे नहीं, वो मेरे पास नहीं आता, कहता है कि मैं तुमसे इम्प्रेशन अब नहीं लूँगा क्योंकि तुम मुझे मार दोगे एक दिन, इवन दो ही इज़ ओवर इट नाउ। बट अगेन learn as much as you can from 3 patients, from 50 patients, and at the end of the day, just be really good at your skills. That is it. That's great to hear. Okay, you should have actually experience on how to interact with the patients. That's great. Ryan, how about you answer to this set? यस, तो देखें, एक वाज़ेह फ़र्क तो है। once you're in a public university hospital and once you're in a private university hospital, सबसे मेन फर्क जो होता है ना, वो तो होता है आपका द पेशेंट यूर गेटिंग इन। तो पब्लिक के अंदर यूजुअली द पेशेंट इज नॉट दैट अफोर्डिंग, और प्राइवेट के अंदर जो है वो होता है अफोर्डिंग पेशेंट। अब फर्क यहाँ आ रहा है कि प्राइवेट के अंदर जो अफोर्डिंग पेशेंट है वो कह रहा है कि भाई, आई हैव पेड यू गाइस एंड आई हैव पेड अ गुड अमाउंट, तो आई वांट टू बी ट्रीटेड बाय समवन हु नोज हाउ टू डू थिंग्स। ये बेसिकली प्राइवेट हॉस्पिटल की जो पेशेंट है उसका माइंडसेट होता है। वाइल पब्लिक के अंदर ये होता है कि ऑब्वियसली दे नॉट दैट अफोर्डिंग, तो दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। तो वो जिसको वाइट कोट में देखते हैं ना, वो डॉक्टर साहब होते हैं। एंड अब वो डॉक्टर साहब कुछ भी करें उस पेशेंट के साथ, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो ही स्टेज है जब बेसिकली स्टूडेंट्स जो है वो सीख रहे होते हैं, राइट? तो जब तक दे वोंट टैकल विद दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस के इतने सारे पेशेंट्स को ये मेन फर्क होता है पब्लिक पब्लिक हॉस्पिटल के अंदर एंड प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, कि यू सी कि द स्किल्स डेवलप्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ अ पब्लिक यूनिवर्सिटी बाय द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर। वैसे तो फिफ्थ फाइनल ईयर तक खाली हिस्ट्री टेकिंग होती है, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट नो अबाउट बीडीएस, लेकिन एमबीबीएस में तो यू विल फाइंड के यू विल बी टेकिंग हिस्ट्री थ्रू आउट योर थ्री क्लिनिकल ईयर्स। उसके अंदर इतना कुछ ज्यादा आपका लेना देना होता नहीं है। लेकिन इसके अंदर भी फर्दर रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं जब आप प्राइवेट कर रहे हैं ना, तो देन यू विल बी जस्ट ऑब्जर्विंग। आपने खड़े होके अपने सीनियर डॉक्टर के साथ खाली ऑब्जर्व करना है, एंड यू विल बी सीइंग कि वो हिस्ट्री टेकिंग कैसे कर रहे हैं, फिर आप हिस्ट्री टेकिंग करते हैं। लेकिन पब्लिक के अंदर ये होता है कि पेशेंट फ्लो, अगेन अब्बास वाली बात, पेशेंट फ्लो इतना ज्यादा होता है कि वो डॉक्टर भी कब तक करेगा। ही बी हैविंग टू, वो कहेगा यार अब आओ और आगे खुद सीखो। तो फाइनल ईयर तक चलते चलते ना, वो बच्चा जो पब्लिक का होता है उसकी स्किल्स फिर भी डेवलप कर चुकी होती हैं, क्योंकि शुरू में वो अनाड़ी होता है, बाद में वो इतने खराब कर करके इतना सीख चुका होता है कि उसे आ जाती है बेसिक्स। तो इसका एक बेसिकली ये बच्चों को क्रैक कर चुके हैं, प्राइवेट मेडिकल स्टूडेंट जो हैं वो क्रैक कर चुके हैं ये बात कि यार हमें इतना ज्यादा जो है ना पेशेंट नहीं मिलेंगे। दे नो दिस। तो उसका डेफिसिट पूरा करने के लिए व्हाट दे डू इज कि वो सेकंड ईयर के एंड पे, यानी कि थर्ड ईयर शुरू होने वाला है, क्लिनिकल ईयर शुरू होने वाला है, या थर्ड ईयर के एंड पे एंड फोर्थ ईयर के एंड पे, दे गो फॉर इलेक्टिव्स इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज। तो जब वो इलेक्टिव करते हैं ना, 2 से 3 हफ्ते का, तो उसके अंदर वो अपना हाथ साफ कर रहे होते हैं। उसके अंदर वो हाथ साफ करते हैं, उसके अंदर उन्हें डिफरेंट स्किल्स डेवलप करते हैं, फिर वो उन स्किल्स को लेके इम्प्लीमेंट करते हैं थ्रू आउट देयर क्लिनिकल ईयर्स,
कि यार वहां पे जब मैं था मैंने इस पेशेंट को इस तरह से डील किया था। और उस वक्त तो मतलब ऑब्वियसली आप जब पब्लिक यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं देन यू डीलिंग विद द पेशेंट हिमसेल्फ, राइट? तो आप उसके ऊपर अपने हाथ साफ कर रहे हैं सारे। एंड आप इधर आए तो आप हिस्ट्री टेकिंग कर रहे हैं, तो आप उसके बेसिकली को रिलेट कर रहे होते हैं एकेडमिकली एंड क्लिनिकली। दीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लिनिकल नॉलेज इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एकेडमिकल नॉलेज। आप रट्टे मार लेंगे, लेकिन जब पेशेंट आपके सामने आके बैठेगा ना, तो आप उसको वैसे डायग्नोस नहीं कर सकते, क्योंकि नॉट एवरी पेशेंट इज अ बुक पेशेंट, राइट? बुक के अंदर एक आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना हुआ होता है पूरा, कि यार ये पेशेंट इस तरह से आके क्या कहते हैं आके अपने आप को दिखाएगा। तो इट्स नॉट जरूरी कि हर दफा वही पेशेंट उसी तरीके से आए और वही चीजें उसको हो रही हों। तो ये है। और मेरे ख्याल से पब्लिक यूनिवर्सिटीज टेक अ पॉइंट इन दिस कि दे हैव बेटर स्किल्स देन प्राइवेट स्टूडेंट्स। लेकिन आई थिंक प्राइवेट स्टूडेंट्स आर कोपिंग अप विद दिस डूइंग द इलेक्टिव्स। यस। ओके, यू नो, आपने बहुत अच्छा एम्फोसिस किया है क्लिनिकल एक्सपीरियंस पे, जो एक मेडिकल स्टूडेंट को होना चाहिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आने के बाद। दैट्स ग्रेट। ओके, सो एज वी डाइव इन इनटू द कंक्लूडिंग सेशन, मैं आप दोनों से प्रेफरेबली पहले अब्बास आपसे एक एक एडवाइस लेना चाहता हूँ कि व्हाट शुड व्हाट वुड यू एडवाइस टू द प्री मेडिकल स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट? All right. So first of all, off the bat, there is no shame in getting admitted into a private university. People can have the best course, people can have great percentages, but if they want to have the best facilities, the best faculty, if you want to get top tier stuff, bilkul, if you think that particular university fits your criteria, then go for it. इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, ऑब्वियसली एक अफोर्डेबिलिटी जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है इन चीज़ों में। लेकिन अगर इफ़ योर पेरेंट्स कैन अफोर्ड इट एंड दे आर encouraging you, then there is no shame in going into a private universities. Again, to all the students that have cleared their MDCAT, my advice to you is that look into every single university that you apply into. इफ़ यू हैव फ्रेंड्स दे, डाव में हैं, JSMU में हैं, अल्तमश में हैं, JNDC में हैं, उन सब से पूछें, उन सब के एक्सपीरियंसेस लें। मिड एंगल ने बहुत अच्छी चीज़ की है कि दे आर एक्चुअली हैव स्टार्टेड दीज पॉडकास्ट टू हैव अ closer perspective on how universities are और उनका environment कैसा है, and how everything is going inside that particular universities, and that is why me and Rayan are here to provide you fresh perspectives about our universities. तो जस्ट आजकल तो टेक्नोलॉजी अपने अरूज पे, तो रिसर्च करना इज लिटरली बाएं हाथ का खेल। आप इन अ सेकेंड, स्प्लिट सेकेंड्स में आपके पास हर चीज़ अवेलेबल होती है। तो लुक इनटू इट एट योर ओन रिसर्च। एंड अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं यार, तो आप उसको एम्ब्रेस करें कि हाँ यार मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हूँ और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का दिया हुआ है, सब कुछ है। पर्सनली मेरे डाव के दोस्त हैं, मेरे JSMU के दोस्त हैं, वो हमारी यूनिवर्सिटी को देखते हैं और वो कहते हैं यार तुम्हारी क्या लैब। मेरी दोस्त का एक रील अकाउंट है और उसमें हमारी यूनिवर्सिटी फीचर हुई हुई है। वहाँ पे JSMU के स्टूडेंट्स, वहाँ पे डाव के स्टूडेंट्स लिटरली यार आपकी लैब कितनी अच्छी है, आपका ये कितना अच्छा है, आपका लेक्चर हॉल ये है, आपका वो है। तो द वो तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, आई एम नॉट पुटिंग पब्लिक यूनिवर्सिटीज इन अ बैड स्पॉट है। व्हाट आई एम जस्ट सेइंग इज दैट कि देयर इज नो शेम इन बीइंग इन अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। यार आप अच्छी लाइफ जी रहे हो, एनवायरनमेंट है, लोग अच्छे हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज में भी बहुत अच्छे लोग हैं। एनवायरनमेंट अच्छा होगा बुरा होगा, दैट डिपेंड्स, अगेन इट्स just words, and that is it. Private, public, be a good doctor, be a good dentist, that is it. That is what I have to say. That's a really great ethical advice from your end, Abbas. And Rayan, what would you advise to all of us? यस। तो मैं अब्बास के पॉइंट को जरा सा लेके आई लाइक टू एम्फसाइज ऑन दैट एज वेल कि यार आई टेल यू एक्सपीरियंस कि मैंने अभी जो रिसेंटली देखा कि आई एम पार्ट ऑफ फ्रिप। इफ पीपल डोंट नो हु व्हाट फ्रिप इज बेसिकली इमरजेंसी जो आपकी होती हैं, उसके अंदर आपको जो बेसिक लाइफ स्किल्स होती हैं वो आपको सिखाते हैं। तो आई एम एन इंस्ट्रक्टर एट फ्रिप, राइट? तो फ्रिप, व्हेन यूर पार्ट ऑफ फ्रिप, तो आपको जो है ना यू मीट डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस। तो एक ऐसा ही सिनेरियो हुआ कि JMDC के अंदर जो है वो फ्रिप की वर्कशॉप हो रही थी एंड आई वाज वन ऑफ द इंस्ट्रक्टर्स जो कि वहाँ पे सिखा रहा था। तो वहाँ पे जो है मेरे साथ
डाउ के बच्चे थे जो who were my fellow instructors, right? तो वो आए and I had a previous interaction with them as well in one of the previous workshops. तो वो कहने लगे यार, when they came and saw my university, right? So I'm not even joking right now. They were shocked. They were like, यार तुम्हारे पास इतना बड़ा ग्राउंड है फुटबॉल खेलने के लिए. You have such a big court for basketball. And they were like, यार तुम you guys have every facility. So private, when public is excelling in some of the things, right? So private is excelling in some other thing. तो ये this is मतलब obviously फीस का बहुत बड़ा एक डिफरेंस आ जाता है एंड फीस इज इट्स नॉट अ जोक. स्पेशली जो अब हो गई है फीसें, जो इस साल से मैंने फीस देखी है अपने कॉलेज के, आई वाज शॉक्ड. एंड आई डोंट थिंक कि पूरे 100 बच्चे हो भी पाएंगे इन द करंट कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान, लेकिन इट इज अ बिग इट्स अ बिग थिंग टू कंसिडर, राइट? कि इतनी ज्यादा फीस के बाद. लेकिन आई टेल यू व्हाट, कि वो जो यूनिवर्सिटी पब्लिक कहीं पे एक्सेल कर रही है तो कहीं पे प्राइवेट एक्सेल कर रही है. दूसरी बात, व्हाट वुड बी माय एडवाइस फॉर द करंट प्री मेडिकल स्टूडेंट्स, राइट? तो देखें, आई वुड एडवाइज देम कि इफ यू ट्रूली पैशनेट अबाउट मेडिसिन ना, एंड यू नो व्हाट यू आर साइनिंग अप फॉर, क्योंकि आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट मेडिसिन. माई आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स. तो मैंने तो बचपन से वही देखा है कि यार, दिस इज बाबा, दिस इज भाईजन, एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू बी, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. तो मैं तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा इंक्लाइंड था. लेकिन जो बच्चे जिनके घर में मेडिसिन वाला नहीं है कोई, एंड दिस एंड दैट, जिनको नहीं पता कि व्हाट दे आर साइनिंग अप फॉर, it's not an easy way, it's not an easy road that you have to follow. It's a very tough road and it will require you sleepless nights. And आपने at points you'll have to leave your family functions, you'll have to leave everything behind, क्योंकि आपने जो है वो पढ़ाई करनी होगी. जैसे मेरे साथ अभी हो रहा है, मेरे प्रॉफ्स हैं नॉट इवन इन अ मंथ, इट्स लेस देन मंथ. सो एंड इनफैक्ट मेरे घर में शादी चल रही है एंड आई हैव लेफ्ट एवरीथिंग, मैं कहीं भी नहीं जा रहा. तो आपने इन सब चीजों के लिए रेडी रहना है. यू हैव, मतलब आपने, एंड प्लस आपने रोड मैप बनाया हुआ है कि आपने करना है एमएलई या आपने करना है प्लैब. मैं अपनी बात करता हूँ, इफ आई आई टॉक फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, तो आई प्लान ऑन एमएलई, राइट, इंशाल्लाह. तो अगर मैंने एमएलई का रोड मैप बनाया हुआ है ना, तो आई नो कि थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता. आई वोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, आई विल हैव वेरी लिटिल टाइम फॉर थिंग्स, फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर थिंग्स, राइट? कि एक्टिविटीज में जो हूँ बाहर आउटसाइड ऑफ स्टडिंग एंजॉय कर रहा हूँ. तो इन सब चीजों के लिए आपने रेडी रहना है कि यार बहुत मुश्किल पढ़ाई है, इट्स नॉट इजी. प्लस आपने जो है फोकस रहना है. इफ यू आर, अभी एमडी कैट हुआ है मेरे ख्याल से एंड अभी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं हुआ है, तो अगर आपका नहीं हुआ ना, देन यू डोंट हैव टू बी सो सो अपसेट अबाउट इट. मैं जो हूँ ना, आई वाज अपसेट एट माय टाइम, क्योंकि मेरा एमडी कैट स्कोर बहुत ज्यादा नहीं आया था. एंड नाउ व्हेन आई लुक बैक, आई एम लाइक यार मैं क्यों अपसेट, आई डोंट नो व्हाई आई वाज अपसेट. मैंने कहा यार, इट वाज ओके. मेडिसिन इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. आई नो प्री मेडिकल के बच्चों को 12th के बाद एमडी कैट के अंदर वो इतनी मेहनत करते हैं, और उसके बाद जब उनका स्कोर अच्छा नहीं आता है, उनका पब्लिक यूनिवर्सिटीज में नहीं होता, सो दे आर वेरी डिसहार्टेंड कि यार शिट, ये तो रह गया, आई हैव टू डू दिस. तो आपने अपने आप को उतना ही खाली प्रेशर करना है जितना जरूरी है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. मेडिसिन इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. प्लस मेडिसिन इज नॉट as rewarding as it was before, and it is rewarding, I'm not saying it's not rewarding, it's rewarding but in the later stages. तो आपको शुरू में तो आप देख रहे होंगे कि आपके दोस्त जो हैं जो डिफरेंट फील्ड्स में हैं, तो वो तो एक्सेल कर रहे होंगे एंड यू विल बी जस्ट लाइक यार मैं तो पढ़ता ही रह गया बैठकर, एंड ये सारे एक्सेल कर गए. यू विल एक्सेल एट सम पॉइंट इन लाइफ, लेकिन वो लेट आएगा. तो इसलिए व्हेन आई एम्फसाइज ऑन, इफ यू आर पैशनेट अबाउट इट देन डू इट, गो फॉर इट. अगर साल रिपीट करना पड़ रहा है तो करें, इफ यू आर पैशनेट अबाउट इट. लेकिन साथ में एक बैकअप प्लान रखें, क्योंकि यू नेवर नो कि आपका अगले साल भी होता है नहीं होता, सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं. मैं पाकिस्तान, स्पेशली इन पाकिस्तान, यू डोंट नो कि अगले साल कौन किसकी हुकूमत होगी, पीएमसी होगा, पीएमडीसी होगा, कौन कंडक्ट कर रहा होगा, कैसे कंडक्ट कर रहा होगा, यू डोंट नो एनीथिंग. तो उस हिसाब से हैव अ बैकअप प्लान, गेट एनरोल्ड इन समथिंग, जो कि आप अगर खुदा ना खासा बाद में नहीं होता, तो यू हैव अ बैकअप प्लान कि आप यार कंटिन्यू करें उसे. So that would be my advice. And this was a brief perspective from my side on medicine कि इस तरह करना है आप लोगों ने. थैंक यू सो मच रेयान, आपकी एडवाइस के लिए. अब्बास, आपकी एडवाइस के लिए भी थैंक यू सो मच. आई होप जो हमने डिस्कशन की इस पॉडकास्ट में वो
हमारी ऑडियंस प्री मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं उनकी जितनी भी एम्बिग्विटीज हैं, कोई क्वेरीज हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनको क्लियर आउट कर देगी। एंड दीज आर माय पर्सनल वर्ड्स के medicine is not the end of the world. Take it, get some, some backup plans for yourself if you're genuinely interested in, doing medicine or pursuing it. So, do your best. And I hope you get admission in your dream universities. Thank you so much, everyone, and see you in the next podcast.